have a little different view over here, sir. Sir, I would like to bring it to the notice to all the ladies and gentlemen present over here. If you see the history of Afghanistan, let's say last 2000 years, no foreign power, I'm repeating, no foreign power, no matter how mighty, has been able to take hold of this terrain of this country. The terrain is such, it is practically impossible to defeat. And as a result, we do talk about Kandhar of Mahabharat, Kandhari, Mama Shakuni, their kingdom and all, that they were the rulers. But by and large, in foreseeable this past that we see, it is always the factionalism of various tribes. There was never a uniform government. Even before, even when Najib was in power and even Russians invaded that, it was the same state going on. Then Russians went in and Americans went in. And so saying that we should go into, our boots should go on ground in that area to show a regional this thing may not be a very, very right decision at the moment. Like sir has said, phase 1, phase 2, I've got no doubts about those things. But I would like to add a phase 0 here, maybe something before that. Rather than we putting our boots on ground, now we are part of the United Nations Security Council, non-permanent member. And then we have a country called Maldives as a president of UNSC. So we have a fair amount of leverage over Maldives diplomatically. So we can force them to pass a resolution to get a peacekeeping force over here. And when I say peacekeeping, I would say peacekeeping. Let me talk about. Who's it, sir? Let me talk about. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So that could be one chapter 7 enunciation, which probably Dr. Ved would give us in more detail because he's got first-hand experience. So that could proceed. And in that, I would also recommend that instead of sending in, let's say, Indian or let's say Pakistani or any neighboring country peacekeeping force, it should probably be somebody from say Africa or even the NATO countries or whatever. So that probably is the reason. And now that Dr. Ved has already said so, that means he has this point fresh in his mind, and we all are waiting to listen to him. And let me tell you, ladies and gentlemen, getting the appointment of Dr. Ved Pratap Vaidik and listening to them, it's a lifetime experience for all of us, and I'm sure we're going to be benefited. So all you also, Dr. Ved sir, please sir. Thank you, Dr. Dhiman. मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने अफगानिस्तान पर आज इस वार्ता को आयोजित किया गया है। सरदार जी, जनरल साहब का पूरा बयान मैंने सुना और मैं महसूस करता हूँ। आवाज आ रही है? ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ जी, सुनाई दे रहा है। जनरल साहब ने जहां समाप्त किया है, मैं वहीं से शुरू करता हूं कि भारत क्या करे। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जनरल साहब ने अफगानिस्तान की सारी स्थिति को बहुत अच्छे ढंग से पेश किया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आर्मी के जनरल तो हैं ही, लेकिन बड़े प्रोफेसर भी हैं। किसी विद्वान की तरह इन्होंने सारे चित्र को सबके सामने रख दिया। मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन मैं शुरू वहां से करता हूं जहां उन्होंने खत्म किया कि भारत की भूमिका क्या है। आपको मैं बताऊं कि अफगानिस्तान पर मैं पिछले 55 साल से काम कर रहा हूं। अफगानिस्तान बराबर पिछले 50 साल से 52 साल से मैं जाता रहा हूं। वहां के लगभग सभी प्रधानमंत्रियों से, वहां के बादशाह ज़ाहिर शाह से, उनके बच्चे नाती पोतों से और तालिबान नेताओं से भी मेरा सीधा संबंध रहा है। 1999 में जब हमारा जहाज हाईजैक हुआ था और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, मैं न्यूयॉर्क में था, जनरल असेंबली में मेरा भाषण था। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने तुरंत कंधार के पीर गैलानी जी से बात की लंदन में, उनके घर गया। उसके बाद मुल्ला उमर से संपर्क हुआ और हमारा जहाज छूटा 1999 में। उस समय तालिबान लोग वहाँ काबिज थे, मुजाहिदीन वहाँ काबिज थे।
लेकिन अब मैं ये मानता हूँ कि भारत को वहाँ फौजें नहीं भेजना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि जो अफगानिस्तान के इतिहास को जानते हैं उन्हें पता है कि 1838 में जब हमारी फौजें वहाँ गई थी, था अंग्रेज का राज, लेकिन फौजें हमारी थी। कमांडर अंग्रेज होंगे, सिपाही हमारे थे। 16,000 हमारे सिपाही गए थे। 4 साल बाद जब वो लौटे हैं तो 15,999 सिपाहियों को कत्ल कर दिया गया। सिर्फ एक अंग्रेज डॉक्टर ब्राइडन वहां से बच के निकला था, और जब पेशावर पहुंचा तो 30 किलो वजन उसका कम हो गया था, हड्डियों का ढांचा रह गया। उसके बाद जब बबरक कारमाल की सरकार आई तब सोवियत संघ ने अपनी फौजें भेजी। 13-14 हजार सोवियत सोल्जर्स वहां मारे गए। उन दिनों भी मैं अफगानिस्तान गया था। अपनी आंख से मैंने देखा कि जगह जगह, हर शहर में, गांव में, पूरे अफगानिस्तान का मैंने दौरा किया। रूस विरोधी माहौल हर घर घर के अंदर हो गया था, जबकि बबरक कारमाल जबरदस्त लोकप्रिय सांसद काबुल से हुआ करते थे। जब मैं काबुल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो बबरक कारमाल मेरे साथ बसों में घुमा करते थे। लेकिन मैंने उन दिनों देखा कि एक आदमी उनकी तारीफ करने वाला काबुल के बाजार में नहीं मिलता था। और हुआ क्या कि अंततोगत्वा रूसी सारे सोल्जरों का न केवल सफाया कर दिया गया जगह जगह से, एक एक सोल्जर को वहां से वापस लौटना पड़ा। बबरक कारमाल को भी हटा दिया गया। उनकी मौत फिर मॉस्को में हुई। मॉस्को में भी मेरी उनसे भेंट हुई, मैं मिलने गया था। उनके शिष्य नजीबुल्लाह, जो कि अफगानिस्तान में मेरी सुरक्षा देखा करते थे, वो राष्ट्रपति बने। नजीबुल्लाह से भी मेरी काबुल में और दिल्ली आए वो एक बार विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के, राजीव गांधी के ज़माने में, तब उनसे मेरी भेंट भी हुई। मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि कोई भी विदेशी फौज अफगानिस्तान में कभी सफल नहीं हो सकती। आप सोचिए कि अमेरिका ने 20 साल में अपने 2,500 सोल्जर खो दिए। नेटो, अमेरिकन फोर्सेस, सबको अफगान लोगों ने पस्त कर दिया। विदेशी फौजी को कभी अफगान पसंद नहीं करते। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान में अभी अगर हम कोई सैनिक प्रशिक्षण दे रहे हैं, कुछ हथियार साजो सामान की मदद कर रहे हैं, तो वो तो चलती रह सकती है, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन हमको अपनी फौज बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। भारत सरकार खुलेआम साजो सामान भेजने की बात भी नहीं कहती। नजीबुल्लाह के ज़माने में स्वयं नजीबुल्लाह ने मुझसे कहा था कि आप हमारे लिए कुछ जहाज भिजवा दें, कुछ फौजी भिजवा दें। उनके उपराष्ट्रपति मेरे घर भी मुझसे मिलने आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने बहुत ही विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। 1981 में जब प्रधानमंत्री बबरक कारमाल से मैं मिलने गया तो वो मेरे मित्र थे पुराने, उन्होंने मुझसे बहुत आग्रह किया कि आप मिसेस इंदिरा गांधी से कहिए कि वो फौज आपकी भेज दे। रूसी फौजों को हमारे लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, इंडियन लोगों का बहुत मान करते हैं, इज्जत करते हैं। अगर आपकी फौजें आ जाएंगी तो हमारा काम बन जाएगा। इंदिरा जी से मैं पहले ही ये बात करके गया था कि बबरक भाई मुझे फौज भेजने के लिए कहेंगे। तो इंदिरा जी ने मुझसे पूछा कि हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। मैंने कहा हमें फौज बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। वो कहने लगी मैं आपसे सहमत हूँ और आप उनको किसी तरह से वो नाराज न हो, ये बात समझा दी। बबरक कारमाल को भी मैंने समझाई, राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को भी मैंने ये बात कही, उनके उपराष्ट्रपति जो मेरे घर आए थे उनको भी ये बात मैंने समझाई। अब मैं फिर कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी फौजें वहाँ नहीं भेजना चाहिए। अगर हम वहाँ फौजें भेजेंगे तो हमारी मुसीबतें बहुत बढ़ जाएंगी, बहुत दिक्कतें बढ़ जाएंगी। मैं उन पर बहुत विस्तार से बातें नहीं बताना चाहता हूँ कि हमको वहाँ क्या क्या दिक्कतें होंगी। लेकिन जैसा कि अभी दीवान साहब कह रहे थे, मैं पिछले 1 महीने में 2-3 बार ये बात लिख चुका हूँ और कई टीवी चैनल्स पर कह चुका हूँ कि हमें अगले 1 साल तक के लिए वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेना, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस की पीस फोर्स के तौर पर भिजवाना चाहिए।
वो हम क्यों भिजवा सकते हैं? कि देखिए, गजब का इस समय मौका है हमारे पास। इस समय मालदीव के जो विदेश मंत्री हैं उनको हमने चुनवाया है, वो जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बने, कितनी बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष, सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष हम हैं, भारत अध्यक्ष। और तीसरी बात कि हमारी मदद के लिए दुनिया के कई देश, अफ्रीकी देश, एशियाई देश और मुस्लिम देश हमारी मदद के लिए तैयार होंगे, हमारा समर्थन करने के लिए तैयार होंगे। हम सबको तैयार करके वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूनाइटेड नेशंस की पीस फोर्स 1 साल के लिए भेजें। और ये जो बात कह रहे हैं तालिबान, ताज़ा बयान आज का यही है तालिबान का कि अशरफ गनी हट जाएं। और डॉक्टर अब्दुल्ला उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला है, लेकिन डॉक्टर अब्दुल्ला वहाँ प्रधानमंत्री रहे हैं। और हामिद करज़ई जब राष्ट्रपति थे तो उस जमाने में वर्षों वो विदेश मंत्री रहे। मैं इन तीनों को, हामिद करज़ई, अशरफ गनी और अब्दुल्ला, तीनों मेरे मित्र हैं। तीनों के साथ बहुत लंबा समय से मेरा परिचय रहा है, आत्मीयता रही है, एक दूसरे के घर भी हम लोग जाते रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो भारत के सच्चे मित्र हैं, लेकिन हमें बहुत व्यवहारिक होना होगा। किसी राष्ट्र का कोई व्यक्ति न शत्रु होता है न मित्र होता है, उसके अपने राष्ट्रहित होते हैं, उनकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। हम चाहेंगे कि अशरफ गनी और डॉक्टर अब्दुल्ला की सरकार वहाँ सुरक्षित रहे, उनके जीवन, उनके परिवार सुरक्षित रहे। डॉक्टर अब्दुल्ला का परिवार तो दिल्ली में ही है बरसों से, लेकिन अशरफ गनी वो न्यूयॉर्क में जब प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे वहाँ भाषण के लिए 20-22 साल पहले बुलाया था। मैं उनकी भी सुरक्षा चाहता हूँ, लेकिन हमें चाहिए ये जो हम नहीं कर रहे हैं, भारत सरकार नहीं कर रही है, वो उसको करना चाहिए कि तालिबान से खुलेआम हमको बात करनी चाहिए। तालिबान जितनी हमारी बात सुनेगा, मैं नहीं समझता हूँ कि वो अमेरिकियों की, चीनियों की और किसी की बात भी सुनेगा। आप ये कहेंगे कि तालिबान को तो पाकिस्तान चलाते हैं, तालिबान को पाकिस्तान पैसे देता है, हथियार देता है, रणनीति बताता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको प्रोटेक्ट करता है, वो उसकी बात सुनेगा या हमारी बात सुनेगा? तो आप एक बात मेरी सुन लीजिए कि पाकिस्तान खुद तालिबान से बहुत घबराया हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो इमरान खान काबुल क्यों जाते, उनके विदेश मंत्री काबुल क्यों जाते, उनके सेनापति बाजवा काबुल क्यों जाते, और उन्होंने बार बार ये बयान क्यों जारी किया है कि हम अफगानिस्तान की सरकार को सुरक्षित देखना चाहते हैं। वो एक दोहरा खेल खेल रहे हैं, तालिबान की पूरी मदद करते हैं हर तरह से, और दूसरी तरफ अफगान सरकार की सुरक्षा भी चाहते हैं। ये क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि उनको डर लगता है कि अफगान लोग कम से कम 20-25 लाख शरणार्थी वो अफगानिस्तान से निकलकर सीधे पाकिस्तान में शरण लेंगे। 1000, 2000, 10,000 भारत भी आ सकते हैं, यूरोप भी जा सकते हैं, ईरान भी जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा वो पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान की फौज और सरकार किसी हालत में अफगान लोगों को अंदर आने से रोक नहीं सकती। इतना ही नहीं, इस समय पाकिस्तान के हालात बहुत खराब, आर्थिक स्थिति बहुत चौपट हो रही है। ऐसे में 25 लाख शरणार्थियों को पाकिस्तान कैसे संभाले? और जब पठान आते हैं, अफगान आते हैं, चाहे वो ताजिक हो, उज़्बेक हो, गिलजई हो या अहमदजई हो, जब वो आते हैं तो अपने वाली चलाते हैं, वो पाकिस्तानी कानून कायदों को मानते नहीं। इसलिए पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात जो है, जिससे पाकिस्तान अब से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है तब से, और बल्कि उसके पहले से पठानों से डरता क्यों? इसलिए डरता है कि कोई सच्चा पठान कभी अपने मुंह से ये नहीं कहता है कि मैं डूरेंट लाइन को मानता हूँ। डूरेंट लाइन को कोई पठान नहीं मानता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अमेरिका ने जो सीमा खींची थी, उस सीमा को कोई पठान नहीं मानता है। सब कहते हैं कि हमारी असली राजधानी तो पेशावर है। आप ये देखिए कि तालिबान अगर एक बार मजबूत हो जाते हैं काबुल में, तो वो कहेंगे कि हम इन पंजाबियों का राज कभी स्वीकार नहीं करेंगे, हम पठान हैं, हम पंजाबियों की गुलामी करेंगे। तो पाकिस्तानियों को पंजाबी कहते हैं। तो पाकिस्तान को ये डर भी लगता है कि अगर तालिबान आ गए और उनको अमेरिका का जैसा उनसे वार्ता चल रही है सपोर्ट हो जाए, अगर वो सत्तारूढ़ हो गए,
तुर्की का सपोर्ट उनको हो जाएगा। तुर्की में एक आजकल मुस्लिम सरकार। तो ऐसी हालत में पाकिस्तान की दाल बहुत पतली होने वाली, पाकिस्तान की हालत खस्ता होगी, पाकिस्तान डरा हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध हमेशा से खट्टे मीठे रहे हैं। जब अफगान लोग मुसीबत में होते हैं तो वो पाकिस्तान आ जाते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के कई पुराने प्रधानमंत्री मुझे बताते हैं कि हम पाकिस्तानियों से भारतीयों को क्यों ज्यादा पसंद करते हैं। पाकिस्तानी यहाँ आते हैं काबुल में तो हमारी लड़कियों से शादी करना चाहते हैं, वो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में टांग अड़ाना चाहते हैं, वो अपने समर्थकों को वोट दिलाना चाहते हैं, हमको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, हमारी फौज में घुसने की कोशिश करते हैं, हमारे यहाँ इंटेलिजेंस का जाल बहुत फैलाने की कोशिश करते हैं। आप देखें कि 3 बार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध की नौबत आई। 3 बार युद्ध होते होते बच गया है पिछले 70 साल में। तो मेरा निवेदन ये है कि इस समय पाकिस्तान भी बहुत परेशानी में है और चीन, जैसा कि सरदार जी ने कहा, चीन जरूर अपना दांव बहुत संभल के खेल रहा है। देखिए, चीन ने अभी तालिबानी डेलीगेशन को बुलाया और तालिबानी डेलीगेशन ने वहां क्या कहा है, सरदार जी ने कहा है, लेकिन सरदार जी एक बात बताना शायद भूल गए, ये कि तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि हमको उइगर मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है, पूर्वी तुर्किस्तान के लोगों से हमें कुछ लेना देना नहीं है, ये उनका चीन का आंतरिक मामला है। ऐसे ही तालिबान का एक बयान और आया कि कश्मीर से हमको कुछ लेना देना नहीं है, कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। इसका मतलब कि तालिबान भी एक गवर्निंग एलिट की तरह सोचने लगे। 20 साल पहले उन्होंने राज करके जो गलतियां की है उससे वो उबरने की कोशिश कर रहे हैं, छवि ऐसी दे रहे हैं कि वो निष्पक्ष रहेंगे, वो एक सच्चे अफगान की तरह, सच्चे पठान की तरह शासन करेंगे। और इसके अलावा जो आंतरिक शासन है उसके बारे में आज भी अखबारों में छपा है, तालिबान लोग कह रहे हैं कि हम औरतों के साथ आदमी जाएं ही तभी उनको घर से निकलने देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन पर्दा उनको रखना पड़ेगा। और पर्दा देखिए, ईरान में खुमैनी के ज़माने में मैं ईरान में रहा था, उन दिनों मैंने देखा था कि कोई औरत बिना पर्दे के, यानी बिना कम से कम ये लिहाफ ओढ़े हुए या सिर पे एक वो जो रुमाल जैसा डाल के रखते हैं उसके बिना बाहर नहीं निकलती। वो व्यवस्था वो चलाएंगे। और तालिबान बहुत कुछ सीख चुके हैं, पिट पिटा के बहुत उनको अकल आ गई है और तालिबान के पास साधन बहुत है। ये हमारे लोग शायद नहीं जानते हैं कि तालिबान के पास अफीम की कमाई भी बहुत ज़्यादा है, हथियारों की कमाई भी बहुत ज़्यादा है और उनको कई इस्लामी तत्व भी बाहर से काफ़ी मदद कर रहे हैं और पाकिस्तान तो मदद कर ही रहा है उनको, लेकिन वो बड़े आत्माभिमानी हैं, वो पाकिस्तान के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि इस समय सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि हम तालिबान से बातचीत शुरू करें। जब अमेरिका तालिबान से बात कर सकता है और अमेरिकी विदेश मंत्री आ रहे हैं, अगले 2-3 दिन में वो यहाँ होंगे और उसी समय अफगान सेनापति भी यहाँ होंगे, तो ये मेरा ये अनुभव कहता है, मैं गलत हो सकता हूँ और मैं गलत हूँ तो मैं बहुत खुश होऊंगा, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि अमेरिकन विदेश मंत्री यहाँ आकर हमसे कहेंगे कि हमारी बजाय आप अपनी सेना भेजिए, हम हथियार दे देंगे, हम पैसे दे देंगे, मरने के लिए आप अपने इंडियंस को भेज दीजिए, हिंदुस्तानियों को भेज दीजिए। मैं समझता हूँ कि हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मुझे अमेरिका में भी जब मैं स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिसर से मिला करता था आज से 10-15 साल पहले, 7-8 साल पहले, तो वो मुझे परसुएट करने की कोशिश करते थे कि मैं उनका समर्थन करूं कि भारतीय फौज वहां चली जाए। हम क्यों चले जाएं? हमारे लोग वहां जाएंगे तो पाकिस्तान को प्रचार करने का और एक बड़ा मौका मिल जाएगा, राजनीति करने का एक बड़ा और मौका मिल जाएगा। वो कहेंगे कि काफिरों की फौज भेज दी, इन काफिरों को कत्ल करना है तो इस्लाम का धर्म है। इस तरह से हम क्यों अपने आप को फंसाएं? हमको करना ये है, सरदार जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भारत दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी शक्ति है। सबसे बड़ी शक्ति होने के नाते हमको वो भूमिका अदा करनी चाहिए कि आज की सरकार के साथ भी हमारे अच्छे संबंध रहें और कल जो आने वाली सरकार है उसके साथ भी अच्छे संबंध रहें और उसको हम सन्मार्ग पर चलाएं। उसको हम बताएं कि सच्चा इस्लाम क्या कहता है। हर मजहब के अंदर
दोनों तरह की बातें मिलती हैं। धर्म ग्रंथों में दोनों तरह की बातें मिलती हैं, अतिवाद भी मिलता है और समन्वयवाद भी मिलता है। हम इस्लाम की अच्छी बातें बताएं उनको और तालिबान से कहें कि तुम अच्छे मुसलमान बनो भाई, तुम अच्छे कुरान शरीफ में जो प्रेम की बातें लिखी हैं, सहयोग की बातें लिखी हैं, समन्वय की बातें लिखी हैं, उन पे चलो। हमको तुम्हारी मदद करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन तानाशाही चलाना, हथियार के दम पर लोगों को डराना और दूसरों के एजेंट बन के और मुल्कों को तंग करना, चाहे ईरान को तंग करें चाहे भारत को, ये ठीक नहीं है। उनके साथ हम सहयोग करेंगे और भारत एक बड़ा देश है, एक बड़ा भाई है, उसके नाते उसको थोड़ा विनम्र होना चाहिए, थोड़ा उसको बातचीत करने के लिए अपना दिल चौड़ा करना चाहिए, सबसे बात करके हमें इस मामले को सुलझाना चाहिए। और आप ये देखें कि अभी भी डॉक्टर अब्दुल्ला 2 दिन तक लगातार दोहा में वहां बात करते रहे तालिबान के साथ। बातचीत अभी चल रही है और बातचीत में हल नहीं निकला है, लेकिन तालिबान प्रवक्ता ने भी कहा है, डॉक्टर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि हम दोहा में फिर मिलेंगे। मतलब बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। आज जो तालिबान ने बयान जारी किया है कि हम डॉक्टर अशरफ गनी को नहीं चाहते, तो भाई ठीक है, अशरफ गनी भी नहीं रहना चाहते। अशरफ गनी तो बहुत सीधे साधे प्रोफेसर थे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, उसके पहले हामिद करजई की कैबिनेट में मिनिस्टर भी थे। उनको कोई सत्ता का शौक नहीं है, वो तो छोड़ देंगे। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि उनको इतना अनुभव है राजनीति का, उनको रहने दें। तालिबान भी आ जाए, एक संयुक्त सरकार बना ले और साल भर तक उस संयुक्त सरकार को चलाए। उसके बाद चुनाव हो जाए, निष्पक्ष चुनाव में जो भी जीते, तालिबान अगर जीत जाए, अफगानिस्तान की जनता उनको पसंद करती है, वो राज करे। और अगर ये लोकतांत्रिक लोग जीत जाएं तो वो राज करें, जो भी राज करें भारत उनके साथ अच्छे संबंध बना के रखेगा। मेरा निवेदन ये है कि भारत की पहली प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि अफगानिस्तान में युद्ध बंद हो, गृह युद्ध बंद हो, बातचीत से शांति से रास्ता निकले। बहुत धन्यवाद, नमस्ते। थैंक यू वेरी मच सर, वी रियली एनलाइटन लिसनिंग टू योर व्यूज। आपने हमें काफी इंसाइट दी अफगानिस्तान के बारे में और तालिबान के जो है आपने नया एक पर्सपेक्टिव पेश किया हमारे सामने। इनफैक्ट ये काफी नई चीज है हमारे को सुनने में कि तालिबान ने अगर ये बयान दिया है कि वो कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, वो आई थिंक दैट्स ऑलमोस्ट म्यूजिक टू आवर ईयर्स। पर वो तालिबान की जो फितरत है, उन्होंने आज तक अपने किसी भी बात को ऑनर नहीं किया है। Please like and subscribe.